Yes, very good morning, students. Uh, Warm welcome after summer vacations. Hope you all are fine. Again, I will start our class with this pledge. So let us take a pledge with me. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID 19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So class, we'll start second chapter. The name of the chapter is Factors Promoting Growth of Nationalism, Foundation of the Indian National Congress. So we'll start with the nationalism. After discussing factor promoting growth of nationalism, we have to discuss what is nationalism. Nationalism is a feeling of oneness, togetherness, and common consciousness based on political, historical, religious, linguistic, racial, cultural, psychological, and other factors in a state. तो एक स्टेट में नेशनलिज्म क्या है, फीलिंग है वननेस की, टुगेदरनेस की एंड कॉमन कॉन्शियसनेस की, बेस्ड ऑन पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, racial, cultural, psychological and other factors in a state. So क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, कंट्री के लिए, नेशन के लिए, स्टेट के लिए लव फॉर नेशन, लव फॉर स्टेट नेशनलिज्म है. The rise of nationalism consciousness was one of the most important aspects of India's historical development during the 19th century. In a sense, it was reflection of the people's age-old feeling of being Indians. ठीक है, 19th सेंचुरी का ये एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ जो 19th सेंचुरी में, उसमें जो नेशनल कॉन्शियसनेस है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था. तो नेशनलिज्म कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए इंडियन हिस्ट्री के डेवलपमेंट में जो नेशनलिज्म था ये एक मेन एस्पेक्ट था. द फॉलोइंग वर द मेन फैक्टर्स प्रमोटिंग द एमर्जेंस and growth of nationalism in India during the 19th century. So factors promoting growth of nationalism during the 19th century are we'll discuss from the third chapter, socio-religious reforms movement. कौन सी socio-religious reforms movements हुई है जिन्होंने nationalism को बढ़ावा दिया, feeling of nationalism पैदा की. In the 19th century, educated Indians began to examine afresh their religious beliefs and customs and their social practices in the light of new knowledge of Western science and philosophy which they had acquired. तो क्या है कि 19th सेंचुरी में जो एजुकेटेड इंडियन थे उन्होंने क्या किया, धर्म अपने रिलीजन को दोबारा से फ्रेश करने के लिए जो रिलीजियस कस्टम से जो सोशल प्रैक्टिसेस थी उनको वेस्टर्न साइंस और फिलॉसफी के अकॉर्डिंग एक्वायर करना स्टार्ट किया, शामिल करना स्टार्ट किया. द रिजल्ट वॉज वेरियस रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट टू रिफॉर्म हिंदू रिलीजियस लाइक द ब्रह्मो समाज, the Prarthana Samaj, the Aryan Samaj, the Ramakrishna Mission, the Theosophical Society. Similar movements reformed the Muslim, Sikh and Parsi societies also. तो ये कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं, ठीक है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुई हैं जिसने नेशनलिज्म की फीलिंग पैदा की है. इन द रिलीजियस स्फीयर, जब हम रिलीजियस स्फीयर की बात करें in
the religious sphere, the reform movement combated religious superstitions, attacked ideology, polytheism and hereditary priesthood. तो रिलीजियस फील्ड में, रिलीजियस स्फीयर में इन रिफॉर्म्स मूवमेंट ने क्या किया है, इन्होंने क्या किया कि जो रिलीजियस सुपरस्टिशंस थे, वहम भरम थे, ठीक है, उनको ख़त्म किया. आइडियोलरिटी, आइडल पूजा है, जो आइडल वर्शिप है, उस पर अटैक किया, उसके अगेंस्ट गया है ये. पॉलीथिज्म क्या है, बहुत धर्मों में विश्वास करना, ठीक है. एंड हेरिडिटरी प्रीस्टहुड, एक प्रीस्ट है, उसका बेटा आगे प्रीस्ट बनेगा, चाहे हेरिडिटरी जो था, इसको भी इन्होंने रिलीजियस स्फीयर में जो मूवमेंट्स इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की. इन द सोशल स्फीयर में इन जो रिफॉर्म्स हुए, इन्होंने क्या किया, दीज मूवमेंट्स अटैक द कास्ट सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड, अनटचेबिलिटी एंड अदर सोशल एंड लीगल इनइक्वालिटीज़. कानूनी असमानता जो थी उनको दूर करने की कोशिश की सोशल स्फीयर में इन रिफॉर्म मूवमेंट्स ने. दीज मूवमेंट्स वर प्रोग्रेसिव इन कैरेक्टर, for they sought reorganization of society on democratic lines and on the basis of ideas, individual equality, social equality, reason enlightenment and liberalism. तो क्या है, इन मूवमेंट्स ने क्या किया कि सोसाइटी की रीऑर्गेनाइजेशन की ऑन डेमोक्रेटिक लाइंस के ऊपर, कि एक इंडिविजुअल इक्वालिटी दी सबको, सोशल इक्वालिटी मिली, reason, enlightenment and liberalism में. Most of the religious societies had no political mission. बहुत सी religious societies थी जिनका कोई political mission नहीं था. All the same whose hour came under their influence rapidly developed a sense of self-respect, self-confidence and spirit of patriotism. But इन reforms के साथ क्या हुआ, self-respect, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, इसकी डेवलपमेंट हुई. ये एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मूवमेंट significant advances were made in the field of emancipation of women. Some legal measures were introduced to elevate their status. तो क्या हुआ, जो ये मूवमेंट्स हुई, इसके साथ क्या हुआ, इमांसिपेशन ऑफ वीमेन क्या है, वीमेन को मुक्ति मिली, जो इसके ऊपर मुक्ति के क्षेत्र में तरक्की मिली, जो इसके ऊपर बंदिशें थी उसको दूर कर दिया गया. सम लीगल मेजर्स वर इंट्रोड्यूस टू एलिवेट देयर स्टेटस. इसके वीमेन के स्टेटस को ऊपर करने के लिए, एलिवेट करने के लिए और भी मेजर्स इंट्रोड्यूस किए गए. द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड इन्फेंटिसाइड वर मेड इलीगल. सती को, इन्फेंटिसाइड को इलीगल घोषित कर दिया गया. इन 1856 अ लॉ वाज पास्ड परमिटिंग विडो रीमैरिज को परमिट किया. अनदर लॉ पास इन 1860 raised the marriageable age of girls to 10, which was a significant advancement in those days. Many superstitions also began to disappear. और बहुत से वहम भरम थे जो disappear हो गए, जो ख़त्म हो गए. So the reform movements different from each other in many ways. ये जो reform movements हुए, जे एक दूसरे से अलग अलग थे. But they all have been awakening the people to need for change. But इन सारे reforms ने क्या किया, awakening the people को change करने के लिए awaken किया, आगे किया. Next है, the reform movement contributed a great
डील टू द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो रिफॉर्म मूवमेंट से इन्होंने इंडियन नेशनलिज्म के बर्थ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। दीज वर कंट्री वाइड मूवमेंट्स इन्फ्लुएंसिंग पीपल एवरीवेयर एंड नॉट जस्ट इन आइसोलेटेड एरियाज। सिर्फ आइसोलेटेड एरियाज में ही नहीं, एकांत के जो एरिया थे वहाँ ही नहीं, इसने पूरी पूरी कंट्री में इन रिफॉर्म मूवमेंट्स ने पूरे कंट्री वाइड मूवमेंट ने पीपल को हर जगह इन्फ्लुएंस किया। सो उसके बाद है नेक्स्ट फैक्टर, प्रमोटिंग राइज ऑफ मिडल क्लास। rise of British administrative and economic innovations gave rise to a new urban middle class comprising businessmen, industrialists, teachers, lawyers, etc. in towns. तो मिडिल क्लास जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे थे, टीचर्स आ रहे थे, लॉयर्स आ रहे थे शहरों के। द न्यू क्लास रेडिली लर्नड इंग्लिश एज इट प्रमोटेड एम्प्लॉयमेंट एंड गेव अ सेंस ऑफ प्रेस्टीज। तो इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट में चांस मिले और की जो प्रशंसा है बढ़ी। दे ऑर्गेनाइज्ड वेरियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। दिस क्लास बिकॉज ऑफ इट्स एजुकेशन, न्यू पोजीशन एंड इट्स क्लोज टाई विद द रूलिंग क्लास केम टू द फोर फ्रंट। तो अपनी एजुकेशन की वजह से ये जो मिडिल क्लास थी ये आगे आई और इन्होंने क्या किया, ये समझने लगी ब्रिटिशर्स के जो ऑपरेसिव मेजर्स और ब्रिटिश रेजीम के थे, उनके शासन के जो गलत मेजर थे स्टडी के, जो मिडिल क्लास थी बिकॉज ऑफ एजुकेशन वो समझने लगी। द मिडिल क्लास प्रूव टू बी द न्यू साउल ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इन ड्यू कोर्स इन्फ्यूज द होल ऑफ इंडिया विद इट्स स्पिरिट। The national liberation movement in Greece, Italy and Ireland had profound impact on them. तो जो नेशनल लिबरेशन की मूवमेंट्स चली थी ग्रीस में, इटली में, आयरलैंड में, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा इस मिडिल क्लास के ऊपर। दिस क्लास प्रोवाइडेड लीडरशिप टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन ऑल इट्स स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। तो ऑल ग्रोथ स्टेजेस में तो इस क्लास ने लीडरशिप दी इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी। तो प्राइड इन इंडियाज पास्ट ग्लोरी। तो इंडिया का जो पास्ट था, पास्ट में जो इनके वर्क था, अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री को दोबारा से देखना, ये भी एक क्या था, क्रिएट कर रहा था नेशनलिज्म की फीलिंग को। बाय द एंड ऑफ द 19th century many Indians began to feel that to instill a sense of pride in the nation। बहुत से इंडियंस ने जो नेशन पर प्राइड करना स्टार्ट किया। इंडियन हिस्ट्री had to be thought about differently. The British saw Indians as backward and primitive, इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग themselves। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या समझते इंडियंस तो कि ये बैकवर्ड है, ये प्रिमिटिव है, जो स्टार्टिंग में थे आदकालीन टाइम में जो थे, इनकैपेबल है सरकार को, गवर्नमेंट को चलाने के लिए। दिस मेड इंडियंस टू लूज सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके साथ क्या हुआ, लोग इंडियंस का कॉन्फिडेंस लूज हो गया। बट फिर क्या हुआ, प्राइड इन इंडियाज पास्ट ग्लोरी। जब इन्होंने देखा, इंडियन लोगों ने अपनी हिस्ट्री को, अपनी पास्ट टाइम को रिमेंबर किया, तो इन्होंने देखा कि बहुत अच्छा टाइम था, बहुत अच्छे क्राफ्ट्स थी, हमारा ट्रेड बड़ा अच्छा था। जब पहले इतना अच्छा था तो अब क्यों नहीं हो सकता। इन चीज़ों को देखते हुए दीस नेशनलिस्ट अर्ज द रीडर्स टू टेक प्राइड इन इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट्स इन द पास्ट एंड स्ट्रगल टू चेंज द मिजरेबल कंडीशंस ऑफ लाइफ अंडर द ब्रिटिश रूल। तो जो पहला ग्लोरियस टाइम था उसको देखते हुए इन लोगों में कॉन्फिडेंस आया और इसमें अपनी हिस्ट्री को देखते हुए इंडियंस में नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो क्रिएट हुई। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। इट्स अ नेक्स्ट फैक्टर प्रमोटिंग फॉर नेशनलिज्म। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस इंग्लिश लैंग्वेज इन वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया टू गेट रेगुलर सप्लाई ऑफ लो पेड क्लर्क्स टू वर्क इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एस्टेब्लिश्ड बाय देम। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंग्लिश एंड वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में
अप्लाई कर दी to get regular supply of paid clerk to work in the administrative officers. But the spread of English language and Western education helped Indians to adopt modern, rational, democratic, liberal and patriotic outlook. तो जो इंग्लिश लैंग्वेज या वेस्टर्न एजुकेशन थी इसने इंडियन लोगों को कुछ अडॉप्ट मॉडर्न बनने में, रैशनल, डेमोक्रेटिक, पैट्रियोटिक आउटलुक देने में हेल्प की. New fields of knowledge in science, humanities and literature were opened before them. उनके सामने ये न्यू नॉलेज आ गई. इंग्लिश बिकम द lingua franca ऑफ द एजुकेटेड पीपल इन इंडिया. तो इंग्लिश क्या होगी, कम्युनिकेशन के लिए एक संपर्क करने की एक भाषा बन गई. इंग्लिश बिकम द lingua franca मीन्स क्या है कि इंग्लिश है वो कम्युनिकेशन का एक लैंग्वेज बन गई. मतलब कि वही इंग्लिश लैंग्वेज ही थी एजुकेटेड पीपल को कम्युनिकेट करने के लिए. इट यूनाइटेड देम एंड ग्रेजुअली मेड देम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ऑफ देयर राइट्स. द राइटिंग ऑफ जॉन, बहुत से जो राइटर्स हुए उनकी राइटिंग्स ने भी क्या किया है, लोगों में आइडियाज, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ह्यूमन राइट्स एंड सेल्फ गवर्नमेंट की फीलिंग्स दी है. द फ्रेंच एंड द अमेरिकन रेवोल्यूशंस एंड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी फर्दर strengthened their appreciation of these ideas. ठीक है. Next points, next factors promoting to nationalism we'll discuss in the next class. With this, goodbye to all of you.